Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with your preparation. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे. So let's start with the topic first. So today is 1st of September. So the first topic is the first quarter GDP highlight, which has been released yesterday by the NSO. Now the second topic is RBI move to ease liquidity. So this is in relation to this particular news itself. Now the third topic is GST shortfall, because there have been many a times we have discussed the news as well कि जो GST में जो shortfall है state government को जो compensation नहीं दी गई है उसको लेकर के कुछ बातें हैं. Now the fourth topic is environment as an important issue of national importance. And the last topic is China control in the Ladakh. So these are the 5 important articles from both of the newspaper that I'll be discussing. And apart from this, we'll discuss some important MCQs. जो important MCQs है उसको भी मैं discuss करूँगा, so that this will help you for the upcoming prelims examination. और जो कल के सवाल थे उसके explanation भी आपको मैं बताऊँगा आज. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to give a like button on this video. So the first topic is from the Hindu. This is on the front page of the Hindu newspaper. So the first quarter GDP highlight. This is very important for your general studies paper 3, right? It's already the first 3 topic in the syllabus talks about the Indian economy, and equally important for your prelims examination where the question from the NSO GDP consequences core sector की जो बातें. I'll tell you the detailed part of that. तो उसमें कुछ चीजें बताई जाएगी. So let's start with the topic first. According to the latest data जो कल रिलीज की गई है, NSO जो National Statistical Office है, they have released the GDP figures and they have said the forecast is that कि GDP completely तरह से record break हुई है इस बार. 23.9% माइनस में गई है GDP, right? 23.9%. This has happened first time after the independence. ये पिछले 4 दशक में ऐसी पहली बार हुई है कि इस तरह से इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है इंडियन इकोनॉमी के. एंड द रीजन इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द कोविड-19. सो इकोनॉमी हैज बीन इन द लॉकडाउन and imposed because of the compact of the coronavirus outbreak since March. From 22nd of March onwards, as you know, that the country was there in the lockdown. जितने भी सेक्टर्स थे, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, दे वर कम्प्लीटली शट डाउन. तो ये जो क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आई है, जो फोरकास्ट आई है, जो रिपोर्ट्स आई है फ्रॉम द एनएसओ, दिस इज फ्रॉम द अप्रैल टू जून क्वार्टर, एंड दिस वुड बी द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द इंडियन इकोनॉमी. आने वाले फ्यूचर में भी दिस वुड बी द वर्स्ट परफॉर्मेंस. सो -29 डबल डिजिट की ग्रोथ अभी तक इंडिया को नहीं मिली है. ऑल्दो वी वर टॉकिंग बिफोर कोरोना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही थी, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ 9 से 12% करने की बात की जा रही थी, राइट? बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर कोरोना our GDP growth was close to 6.4% only, right? We were about to touch somewhere close to 7%. We already had touched 7% GDP in 2018 और 19 के बीच में, बट अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी कोरोना से कुछ टाइम पहले भी. बट अब जिस तरह से नेगेटिव में ग्रोथ गई है, वी हैव विटनेस डबल डिजिट ग्रोथ इन द नेगेटिव. कभी ऐसी पहली बार हुई है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज विटनेस दिस माइनस ग्रोथ, राइट? ना बात करें कुछ कोर सेक्टर्स की. सो बेसिकली जो हमारी जीडीपी है उसमें जो कोर सेक्टर का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कोर सेक्टर के बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको. कोर सेक्टर में 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसके बारे में एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है. 2013 पे इस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कोर सेक्टर. सो द फर्स्ट इज कोल. आपको ये याद रखना, आप निमोनिक्स बना लो जैसे भी आपको याद रखना हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर एंड देयर दे कैन आस्क यू एनीथिंग, राइट? कोल, crude oil, natural gases, refinery products, fertilizer, steel, cement and electricity. So these are the all 8 sectors of the core sector in India, right? बात करें जो अभी डेटा रिलीज हुई है, that shows that the output of the 8 core infrastructure sector has dropped by 9.6% in the July, and they declined mostly in the production of steel, refinery and cements, right? सिर्फ फर्टिलाइजर को छोड़ के, और एग्रीकल्चर की बात मैं आपको आगे करूंगा उसके बारे में, फर्टिलाइजर को छोड़ के ऑल 7 सेक्टर, दिस इज कोल, crude oil, natural gases, refinery products, steel, cement and electricity have recorded the negative growth in this July. I will show you a breakup of this, what was the actual performance, so that आपको ये clarity मिल जाए.
मैंने यहाँ से ये जो डेटा है दिस हैव टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, बोथ जितने दोनों पेपर में जो न्यूज़ हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को दोनों को मैंने क्लब कर दिया है इस एक न्यूज़ में. So you can see the figure here, like there's a comparison between the April-June 1920 and April-June 2021. तो agriculture, forestry और fishing की बात करें, so in that particular 2019 it performed 3.0 and reasonably यहाँ पे थोड़ी सुधार है, it's 3.4%. So this is the only sector जहाँ पे positive result देखने को मिली है. Now talking about the manufacturing, as you know after lockdown सारी चीज़ें बंद थी, तो पहले 3% की ग्रोथ थी. नाउ दिस इज -39, सो यू कैन इमेजिन -39. नाउ कंस्ट्रक्शन 5.2% थी और ऑल द माइग्रेंट लेबरर्स हैव मूव टू देयर नेटिव टाउन, पूरी तरह से शट डाउन हो गई. यहाँ पे -50.3% की चेंजेस देखने को मिली है. Now talking about trades, hotels, transport, communication services related to broadcasting, this was 3.5%, but it has been also underperformed, बहुत ही ज़्यादा -47.0%. Now talking about the public administration, defense and other services, this constitutes like previously it was 7.7% and now it is -10.3%. अगर GVA की बात करें तो 4.8%, now it is -22.8%. और जो ओवरऑल GDP की मैंने आपको बता दिया 5.2% थी 1920 में, कुछ क्वार्टर में 6.4 के आसपास भी देखा गया, बट नाउ 23.9% इन माइनस, राइट. सो दीज आर द ऑफिशियल फिगर फ्रॉम द NSO. नाउ लेट्स मूव अहेड. व्हाट आर द रीजन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन? क्यों इतनी ज़्यादा जो माइनस में बेसिकली हम देख रहे हैं फिगर्स जो आई है, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द सीवियर इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19, बिकॉज ऑफ विच लाइक नंबर ऑफ सेक्टर हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन फॉर लास्ट 3 months. और इट हैज़ कम्प्लीटली हॉल्टेड द इकॉनमीज एक्टिविटीज़. जो भी इकॉनमी थी, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर गई. एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड. जब काम नहीं होगी, लोगों को जाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली द डिमांड वुड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. द टैक्स रेवेन्यू विच गवर्नमेंट वॉज जनरेटिंग, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इट हैज़ ऑल्सो ड्रास्टिकली रिड्यूस. इट हैज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड. Now लॉकडाउन की अगर बात करें, सो लॉकडाउन हैज स्लोड द ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी इवन प्री COVID-19. कोविड से पहले भी जो इंडियन इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट क्वार्टर्स की, उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी. और इकोनॉमिस्ट सेड कि अगर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको दिस वुड बी द वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन विच वी हैव सीन आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन पहली बार देखने को मिली है पिछले 4 दशक में, है ना. 4 decade इंडिया हैज़ परफॉर्म सच पुअर परफॉर्मेंस, एंड दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड. आने वाले बहुत लंबे समय में टाइम लगेगा, इसको मैं आगे बताऊंगा एक्सपर्ट के क्या ओपिनियन है इस पर. तो एक्सपर्ट की जो व्यू है उनके मुताबिक जो GDP को रिवाइव करने के लिए, एक पॉजिटिव टेरिटरी में लाने के लिए एटलीस्ट 6 क्वार्टर्स चाहिए होंगे, राइट. 6 क्वार्टर्स चाहिए होंगे. सो दिस वुड बी समवेयर क्लोज टू द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर बाय 2022. देन ओनली अ रिवाइवल कैन बी सीन. जो सारी चीज़ें जिस तरह से थी एक पॉजिटिव नोट में आएगी. एग्रीकल्चर ऑल्दो परफॉर्म वेल, और जो सारी सीमेंट्स बेसिकली है, मैन्युफैक्चरिंग है और आयरन स्टील्स हैं, ये सारी चीज़ों को परफॉर्मेंस में लाने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू गिव 6 क्वार्टर्स. और जो एनुअल GDP है दैट इज एक्सेप्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5% to 7% by 2022, right? So this is the figure which has these are the expert opinion what they have portrayed. Now बात करें एग्रीकल्चर की. So agriculture was the only sector which record the modest growth 3.4%. Already 2019 में मैंने आपको बताया it performed close to 3%. Now 0.4% की यहाँ पे growth देखी गई है on the 1 year term. And although all sectors saw the contraction, the steepest were in the 50% construction, जो मैंने आपको फिगर दिखाया था, आप वापस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं. ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड अदर कैटेगरी सिंकिंग टू 47%. So this is the status. Now coming to the other topic, that is RBI move to ease the liquidity. This is there again in the Hindu. आपको national page में ये news मिल जाएगी. This is important for your general studies paper 3, where if you're writing an answer in the mains examination, this points will help you. कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशन जो OMO को लेकर के जो पॉइंट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया है, जिस तरह से NSO की जो डेटा है और जो कोविड की जो सिचुएशन है, लिक्विडिटी की जो प्रेशर्स है, उसको देखते हुए
आरबीआई डिसीजन लेगी टू ईज द लिक्विडिटी प्रेशर्स, ठीक है, एंड राइजिंग द यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो आरबीआई के मुताबिक जिस तरह से गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है दैट इज सेट वुड बी एडिशनल, एक स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाएगा, OMOs के बारे में आपको आगे बताऊंगा। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू इंश्योर ऑर्डरली मार्केट, किस तरह से जो कंडीशन है, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको कैसे इंप्रूव की जा सकती है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, राइट। नाउ द सेंट्रल बैंक हैज़ अनाउंस्ड कि बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट आई, जिस तरह से क्वार्टर परफॉर्मेंस रही है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए दे हैव परफॉर्म्ड कि दे विल बी डूइंग these efforts so that ultimately a revival could be established in the Indian economy. Now what is open market operation, OMOs की अगर बात करें तो जो OMO है, they are the, क्या होती है OMO, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दे आर द मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द आरबीआई, जहाँ पे सेल परचेज की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, राइट, सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ विद इन द ऑब्जेक्टिव कि जो एडजस्ट की जा सके रुपी की जो लिक्विडिटी है, टू एडजस्ट द रुपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट विद द ड्यूरेबल बेसिस, दोनों तरफ से, right? So this is an operation, this is a tool which RBI has been using frequently और बहुत लंबे टाइम से ये टूल यूज किया जा रहा है OMO को, राइट। तो OMO के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल। नाउ एफर्ट्स बाय RBI की अगर बात करें, RBI ने और क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं। So first, RBI is committed to use all the instruments to command the revive Indian economy. क्या क्या instruments वो use करेंगे? First would be to maintain the congenial financial conditions. The second would be to mitigate the impact of COVID-19. चाहे वो लोन को लेकर के हो, रेपो रेट्स हो, उनमें भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दी जाएगी। Now the third would be to restore the economic path of sustainable growth and preserving the macroeconomic and financial stability. राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आरबीआई ने कहा है कि दे वुड बी टेकिंग, एंड आरबीआई आल्सो सेड कि दे वुड अलाउ बैंक टू होल्ड द फ्रेश एक्विजिशन ऑफ, इससे जो हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है जिसको SLR भी कहते हैं, SLR को वो क्या करेंगे, दे वुड अक्वायर्ड फ्रॉम द सितंबर, राइट। एंड आरबीआई सेड कि दे वुड कंडक्ट द रेपो ऑपरेशन इन एग्रीगेटिव अमाउंट दैट इज 1 लाख करोड़ फ्लोटिंग विद द एश्योरेंस प्रेशर्स, जो मार्केट में एडवांस टैक्स आउटफ्लो है उसको भी मैनेज किया जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर्स, द एफर्ट्स दैट हैव बीन सजेस्टेड बाय द आरबीआई, एंड आरबीआई हैज आल्सो अश्योर्ड दैट बोरोइंग प्रोग्राम फ्रॉम द सर्टिफिकेट, जो बोरोइंग प्रोग्राम है फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट year from 2021 would be implementing in the non-disruptive manner, right? जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2021 के लिए आगे कंप्लीट किया जाएगा बिना किसी डिस्ट्रप्शन के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आरबीआई ले रही है मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी लाने के लिए, और इस जो जितने भी डिसीजंस हैं उसके रिजल्ट अगले क्वार्टर तक जरूर दिखेंगे। आई मीन द नेक्स्ट क्वार्टर, दिस इज द Q1 रिजल्ट, एंड आई होप कि जो Q2 के जो रिजल्ट्स आएंगे एनएसओ के द्वारा, तो Q2 में वुड बी डेफिनेटली इंप्रूविंग अ लॉट, राइट। Now the third topic is from the Indian Express, GST shortfalls की बात की गई है। This news has already been discussed a lot, हमने काफ़ी डिस्कस किया है, आपने न्यूज़पेपर में भी इसको कई बार ही पढ़ा होगा। तो लेट्स सी आज इसमें क्या क्या बातें कही गई है, और ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे में कुछ फोल्डर पॉइंट वहाँ पे भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो रिसेंटली जो 7 स्टेट हैं और 1 यूनियन टेरिटरी, 7 स्टेट plus 1 union territories have rejected the government proposal, the center proposal, जहाँ सेंटर ने कहा था कि आप पैसे बोरो कर ले कहीं से भी। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से उन्होंने बताया है लेने के लिए, और जो जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं उसके कंपनसेशन में आप बोरो कर लें। तो ये जो बात सेंटर की तरफ से कही गई है उसको कम्प्लीटली 7 स्टेट गवर्नमेंट ने और 1 यूनियन टेरिटरी ने रिजेक्ट कर दिया। तो मीटिंग जो हुई थी मंडे को, उसमें 6 नॉन बीजेपी स्टेट्स, बेसिकली पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, दे कॉल्ड दैट कि जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बताए गए हैं सेंटर की तरफ से दैट फॉर द कंपनसेशन ऑफ द जीएसटी शॉर्टफॉल दैट वुड बी नॉट वर्किंग एंड दे आर नॉट एग्रीइंग विद दिस, सो दे कंप्लीटली डिनाइड इट, राइट, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। एडिशनली जो राजस्थान और पुडुचेरी है, दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर सपोर्ट टू द इशू ऑफ द कंपनसेशन। बात करें सेंटर और अपोजिशंस की, तो अपोजिशन रूल्स जो स्टेट है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में है ओवर द जीएसटी शॉर्टफॉल। जो पूरी अमाउंट है सारे स्टेट्स को मिला करके जो टोटल शॉर्टफॉल है वो 2.35 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है करंट फिजिकल के लिए, राइट, दिस इज द करंट फिजिकल।
नाउ क्या ऑप्शन सजेस्ट किए गए थे सेंटर की तरफ से, सेंटर ने क्या कहा था स्टेट गवर्नमेंट को? तो सेंटर ने प्रपोज्ड कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, टू बोरो ईदर फ्रॉम द स्पेशल विंडो फैसिलिटेटेड बाय द आरबीआई और बोरो फ्रॉम द मार्केट। ये दो ऑप्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट किए थे, बट स्टेट ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिए बिकॉज उनका कहना है इट वुड प्रपोज द एक्सटेंडिंग कंपनसेशन ऑन द सेस लेविड ऑन लग्जरी डिमेरिट्स सिन गुड्स। क्यों? जब स्टेट लेती है तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देना पड़ता है कुछ बेसिक पॉइंट से भी, मैं आपको वो उसके बारे में आगे बताता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं बोरो कर सकती क्योंकि वो जो भी लोन लेगी वो कॉस्टियर होगी कंपेयर टू जो सेंटर बोरो करेगी, राइट। सो इट विल 150 पॉइंट मोर देन द कंपेयर टू द सेंटर। अगर सेंटर बोरो करती है तो उनको इतना कम देना पड़ेगा, और स्टेट बोरो करती है सो दे हैव टू पे मोर 150 बेसिक पॉइंट्स, राइट। उसके अलावा जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई। ही सेड कि सेंटर वुड हैव टू अमेंड द कंपनसेशन लॉ दैट स्टिपुलेट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंपनसेट द स्टेट। ठीक है, जो भी लॉसेज हुई हैं जीएसटी को लेकर के उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर केंद्र सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे वुड बी कंपनसेटिंग द लॉ। नाउ छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की तरफ से कुछ बातें आई हैं। दे सेड कि सेंटर शुड नॉट प्रेशराइज द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक लोन। ये दिस इज़ वेरी वैलिड पॉइंट। आई डू एग्री कि सेंटर को देखना चाहिए, दे शुड बी लुकिंग इनटू दैट, एंड दिस इज द कंप्लीटली सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज जब जीएसटी आई थी तो सेंटर गवर्नमेंट हैज सेड कि वी वुड बी कंपनसेटिंग वॉट एवर शॉर्टफॉल इज देयर और ऑल द स्टेट वुड बी गेटिंग द सेस एज वेल, बट ऐसी जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। सो दिस इज समथिंग विच सेंटर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू टेक अ कॉल, राइट। And the money compensated for the loss of the revenues should be arranged by the central government। तो ज़रूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अरेंज करे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट पे वो ज़बरदस्ती जोर दे। पेंडिंग अमाउंट जो है जीएसटी की उसके बारे में आपको बता दूं, जो सेंटर की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 97,000 करोड़ रुपीस है, दैट इज अकाउंट फॉर द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, एंड द रेस्ट 1.3 लाख करोड़ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 स्टेट रेवेन्यूज। तो कोविड-19 के बाद भी पूरी तरह से जिस तरह से लॉकडाउन हुई है तो सारे स्टेट्स की रेवेन्यू, चाहे वो लिकर की बात हो, लिकर में स्टेट्स की सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज होती हैं, वो कम्प्लीटली 3 महीने तक बंद थी, तो वहाँ पे स्टेट्स को काफ़ी लॉस हुआ है, तो दैट शुड बी कंपनसेटेड बाय द सेंटर। तो दिस शुड द स्टेट गवर्नमेंट शुड गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, right? Now the other topic from the Hindu, this is from the editorial of the Hindu, that is environment and issue of national importance, right? कि environment एक बहुत ही important issue है, इसको कहीं भी नकारा नहीं जाना चाहिए। This is very important for your general studies paper 3, और जो ड्राफ्ट EIEI है उसके कंसर्न में भी लेकर के कुछ बातें कही गई है, तो वहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो एनवायरनमेंट इज़ करेंटली द सेंटर ऑफ द हीटेड डिबेट, और अगर बात करें एनवायरनमेंट की तो इट शुड बी टेकन, जो जयंती नटराजन है, सी इज़ अ फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर, तो इन्होंने कहा है कि जो एनवायरनमेंट है उसको पॉलिटिकल डिसोनेंस से हट के देखना चाहिए, एंड देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू हाईलाइट द क्रिटिकल फैक्ट्स दैट वुड बी फ्लैग्ड फॉर द पब्लिक नॉलेज। तो जनहित में सबसे पहले काम करने की जरूरत है, एनवायरमेंटल को सेव करने की जरूरत है, ना कि किसी पॉलिटिकल मोटिव से आगे बढ़ने की जरूरत है, राइट। सो व्हाट इज सी हैज हाईलाइटेड, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को। इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, जो हमारे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें इंडिया परफॉर्म करी थी 177 आउट ऑफ 180 कंट्री, राइट। सो दिस वाज देयर बिफोर 2020। उसके बाद जो EPI इंडेक्स आई 2020 में, वहाँ पे इंडिया ने अपने रैंक इंप्रूव किए 168, राइट। तो थोड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखी थी। और जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसकी अगर मैं बात करूँ, रिलीज कौन करती है, सो दिस पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। बेसिकली 2 US की यूनिवर्सिटीज़ हैं, येल और कोलंबिया, इन्होंने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ और यूरोपियन कमीशन के साथ, जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो ये भी आप देख ली, कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ना क्या क्या कंसर्न्स बताए गए हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, तो अपोजिशन ने अलेज किया है कि जिस तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, जो अभी इंक्यूमेंट गवर्नमेंट है, दे हैव प्री ऑक्यूपेशनल क्रोनो कैपिटलिज्म, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है, अपने लोगों को बिजनेस में इंक्रीज करना, या फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस वो जो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मेरा मतलब है जो ड्राफ्ट EIA है, जो ड्राफ्ट EIA अभी आई थी रिसेंटली, उसके बारे में बात है कि एक तरह से वो डेक्रीमेंटल है एनवायरनमेंट को लेकर के, राइट।
ना जो ड्राफ्ट EIA इज अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, बिकॉज उसमें पोस्ट आप ले सकते हैं परमिशन। बिफोर कंस्ट्रक्शन होती क्या थी कि आपको NOC लेना पड़ता था बिफोर यू स्टार्ट, राइट। बट इस नए वाले प्रोविजन में ये की गई है कि आप कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में NOC का क्लियरेंस भी ले सकते हैं, राइट, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जिसको बोलते हैं। Now there are some other problem that जो environmental law है which are very effective, should be very effective against the point of sources like industries। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लास्ट जो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, दे आर एग्रीगेटेड ग्रीवसली इन पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। उनकी तरफ से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग एनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ इट, राइट। तो गवर्नमेंट नीड टू टेक सम स्ट्रिंजेंट एक्शन एंड स्टेप्स अगेंस्ट द वॉयलेटर, या तो फिर उनको पीनल चार्जेस लगाया जाए, बिकॉज पीनल चार्जेस वुड अगेन बी नॉट समथिंग विच वुड बी कंपनसेटिंग। तो मेरे हिसाब से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक रूल्स बनानी होगी जहाँ पे दिस शुड बी कम्प्लीटली बैंडेड। इस तरह से प्रैक्टिसेस को बैंड किया जाए। अगर इन्वायरमेंट को हम मनी से कंपनसेट करेंगे तो इन्वायरमेंट तो हमारी पूरी तरह से फिर खराब ही हो रही है। इन्वायरमेंट को कहाँ से कंपनसेट कर लोगे आप मनी से, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहीं पे इस चीज़ को रोके। मॉनिटरली सेस या मॉनिटरली पनिशमेंट तो बात की बात है, जब इन्वायरमेंट बिगड़ जाएगी फिर हमारे पास सुधारने के लिए कुछ नहीं बचेगा, राइट। नो फोकस ऑन द डिफॉरेस्टेशन। जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है उस पर काम करने की जरूरत है। एंड डिफॉरेस्टेशन आउट टू बी द प्राइमरी कंसर्न ऑफ एनीथिंग थिंकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हो रही है माइनिंग में या फिर इंडस्ट्री सेक्टर्स में, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड जो पॉल्यूशन प्रेशर्स हैं, जिस तरह से पॉपुलेशन के प्रेशर्स हैं ड्यू टू स्लैश एंड बर्न, जो झूम साइकिल जिसको बोलते हैं, दैट इज अगेन रिड्यूस द साइकिल एरिया फ्रॉम 17 to 20 ईयर टू 3 ईयर साइकिल, राइट। जहाँ पे पहले 17 से 20 साल में चीज़ें होती थी, जो झूम साइकिल है वो चलती थी, अब वो घट करके मात्र 3 साल रह गई है, 2 से 3 साल तक, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है उस पर और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ लाने की ज़रूरत है। एफॉरेस्टेशन जो प्रोग्राम्स हैं उसके साथ सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। नाउ द अदर टॉपिक इज दैट चाइना कंट्रोल इन द लद्दाख। ये न्यूज़ आपको आज के फ्रंट पेज में मिल जाएगी, जहाँ पे ये क्लेम की गई है कुछ इनपुट्स की तरफ से, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, कि चाइना ने 1000 किलोमीटर तक लद्दाख में इंटर किया है और जगह को एक्वायर करने की कोशिश की है। सो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर गवर्नेंस की बात करें। इंटरनल सिक्योरिटी ऑलरेडी आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में मेंशन है, तो ये दोनों पेपर में इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, सेकंड पेपर में IR में, और पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी। तो अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस इनपुट्स, 1000 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर है लद्दाख के रीजन पे, लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है LAC के रीजन पे, वहाँ पे चाइनीज़ की इंसर्शन देखी गई है। दे हैव अंडर द कंट्रोल। उनका कहना है, जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, उनके मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नाउ अंडर चाइनीज़ कंट्रोल एंड द रीजन हैज 1000 किलोमीटर्स, राइट। एंड चाइना हैज़ बीन अमैशिंग द ट्रुप्स। अपने जो प्रेजेंस है वहाँ पे उन्होंने अप्रैल से ही दिखाना शुरू कर दिया है। 20 सोल्जर्स वेर किल। अगर मैं पहले पीछे की बात करूँ तो जून में ही गैल्वन वैली में जो डिस्प्यूट हुई थी ईस्टर्न लद्दाख के रीजन में, वहाँ पे कुछ इंडियन सोल्जर्स के लोग भी शहीद हुए थे, और उन्होंने कुछ पाकिस्तान जो बेसिकली दिस इज चाइना, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है PLA, तो जो PLA है उनके भी कुछ लोगों को भी मारा था, राइट। बट ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। नाउ एरिया वाइज ब्रेकअप की अगर बात करें तो कहाँ पे, किस रीजन पे, किस तरह से कितने किलोमीटर्स में कवरेज की गई है या एक्वायर किया गया है चाइना की तरफ से, उन्होंने जिस रीजन पे आने की कोशिश की है। तो दीपसांग वैली की अगर बात करें या फिर चुशुल की बात करें, सो दे हैज़ बीन इन अ सिस्टमैटिक मोबिलाइजेशन ऑफ द चाइनीज ट्रुप इन 2 रीजन पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। ऑफिशियल्स रिवील की जो दीपसांग प्लेन है वहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट जो हमारी 10 और 13 है, वहाँ पे 5 पेट्रोलिंग पॉइंट है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13। सो द स्केल ऑफ चाइनीज कंट्रोल इंडियन परसेप्शन LAC टू बी इन द 90 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पे 900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया को एक्वायर किया गया। नाउ अबाउट 20 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इन द गैल्वन वैली, और जो 12 स्क्वायर किलोमीटर है वो हॉट स्प्रिंग एरिया में देखी गई है। सो दैट आर अंडर द चाइनीज ऑक्यूपेशंस। एंड इन द पोंगटोस, जो पोंगसो लेक है वहाँ पे दैट इज ऑल्सो अंडर 65 किलोमीटर जो है दैट इज अंडर देयर, एंड चुशुल इज 20 किलोमीटर्स। सो आप ये देख सकते हो, ये ब्रेकअप आपके लिए किलोमीटर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट जितने नाम हैं, जितने भी नेम्स हैं, दीपसैंग प्लेन है, चुशुल वैली है, या फिर गैल्वन वैली है, ये सारी चीज़ें, पोंगसो लेक है, ये सारी चीज़ें आपको नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप मेंस में ये सारी चीज़ें लिखोगे तो यू हैव टू राइट दैट, राइट। ये कोट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बफर जोन की अगर बात करें तो इंडिया ने कहा कि वी वुड बी एग्रीइंग विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड देयर वुड बी नो फाइट। तो एक डिस्प्यूट को लेकर के बफर जोन बनाई गई थी, जहाँ पे ये बातें की गई थी जिस तरह का जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है प्रेजेंट में, बेसिकली किसी तरह से डिस्प्यूट ना हो, एक बफर जोन बनाया जाए, इसके बारे में बात की थी। बट चाइनीज फोर्स हैज ऑक्यूपाइंग द कंसिडरेबल एरिया, जैसा मैंने आपको बताया फिंगर 4 टू फिंगर 8 जो पोंगसो लेक है, वहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर बात करें अभी वो जहाँ तक पहुँच गए हैं, वहाँ से इंडिया की जो एरिया है दैट इज़ ओनली 8 किलोमीटर्स, राइट। तो इतने पास आने के बाद इट इज़ वेरी टफ कि फिर जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इंडियन मिलिट्री हैज़ टू रिस्पॉन्ड, दे हैव टू एक्सक्लेट द मैटर टू द चाइनीज़ आर्मी, जो वहाँ पे PLA है। Now the stretch was patrolled by the India and China until May. The India considered to be the part of the perception of the LAC, right? तो ये दो रीजन है, दोनों सेग्रीगेटेड है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो जो सेग्रीगेशन है दैट इज रिलेशन टू दिस नॉर्थ जोन को लेकर के, या फिर जो साउथ है ऑफ लद्दाख, दैट शुड बी इंटायरली कंट्रोल्ड। नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन, कल के जो सवाल थे उसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। So the first question, the answer here is C. So both the statement are correct. That Article 26 provide for the freedom to manage the religious affair that is available to both citizen and the foreigner. और जो Article 27 है that mandate that no citizen would be compelled to pay any taxes for the promotion and maintenance of particular religion or religious institutions. So this is from the Indian polity from M. Lakshmikant, right? Now the second statement, the second question जो है उसकी जो correct option है वो है B. That statement 1 is correct. Exogenic and endogenic process constantly shape the interior of the earth. और जो statement 2 है वो incorrect है। तो correct option ये है कि gravitational force is not same at the different latitude. It is greater near pole and lesser in the equator. तो ये point आप बहुत अच्छे से याद रखें, because इस तरह के सवाल UPSC अक्सर ज्योग्राफी में पूछती हैं। So this is from the basic NCERT class 11th, right? Now coming to the today's MCQs, पहला सवाल है that is from the modern India. With reference to Atim Sabha, consider the following statement. It campaigned against the idolatry, caste prejudice, meaningless ritual and other social ill. And it was set up at Wardha in Maharashtra. So you have to tell me the correct option. If you have read NCERT, this would be very easy for you to answer this question. So choose the correct option. Just write the options in the answer comment section. आप सिर्फ ABCD लिख करके बता सकते हैं। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी कमेंट में जरूर लिख के बताएं, A, B, C या फिर D. Now coming to the second question, this is from the economy. With reference to generalized system of preference, consider the following statement. It is a preferential tariff system under which developed nation extend duty-free to certain goods into the market, and it also helps new export to penetrate the market and increase the market share, right? तो इसके जो correct options हैं वो बताएं, A, B, C या फिर D, right? Whatever you feel is the correct answer, you can just write your answer in the comments down below. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.